العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين وعجزة الناطه أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مخترعهم على مشیت اختراعم ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب الأبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر الاتر وشجرته خیر الشجر نبتت في حرم بسقت في کرم سیدنا ومولانا بالقاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صلوات ماشاءاللہ کافی ہے باپ تشریف فرما مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما سالانہ مجالس شبہائے ماتم امیر المومنین منعقد ہیں اور میں نے اس بادشاہ کے ذکر کو اور اس کے تذکرہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سے ایک آیہ وافی ہدایہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کیونکہ یہاں 3 مجالس سے خطاب کرنا ہے تو ان 3 مجلسوں کا عنوان ہے عالم اور علم اسی کے ذیل میں گفتگو ہوگی ذکر علی کا ہو اور علم کا پتہ نہ چلے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور بات پلٹ کے کہوں کہ ذکر علم کا ہو اور علی کی بات نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا سلامت رہیے شاد و آباد رہیے اسلام برابری کا دین ہے جہاں پروردگار نے اگر اپنی عبادت میں بھی کسی کو بلایا نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت بھی اللہ نے یہی کہا کہ ایک ہی صف ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے سب برابر کھڑے ہو برابری کی بات حج کرنے کے لیے اللہ کے اگر جاؤ گھر کا طواف کرتے ہوئے تو یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ بادشاہ کو آگے جگہ ملے گی اور جو رعایا ہے وہ پیچھے نہیں کندھے سے کندھا ملا کے اس کے گھر کا طواف کرنا یعنی بات اسلام میں برابری کی ہے اور کائنات میں یہی مذہب ہے جس میں برابری کی بات کی جاتی ہے جہاں برابری کی بات کی جاتی ہے کسی کو کوئی فضیلت نہیں لیکن جہاں اتنی برابری کی بات کی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ قرآن میں ایک آیت کوٹیشن بنا کے اتار رہا ہے کہ یاد رکھنا ہر چیز میں برابری ہے کئی موقع ہیں جو میں گنواؤں گا آپ کو اس تقریر میں کہ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا کہ جہاں میں نے سب کچھ برابری کی بات کی ہے لیکن یہ مت بھول جانا کہ علم والا اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والا اور جاہل کبھی برابر ہو گئے ہاں سب جگہ برابری ہے لیکن عالم کے برابر کبھی جاہل نہیں ہوگا. هل يستوي الخبيث والطيب
दूसरी बात ये कही सब जगह बराबरी है, लेकिन तैयब के बराबर कभी खबीस नहीं हो सकता। जरा सा थोड़ा थोड़ा सा साथ देंगे तो बात आसान होती चली जाएगी। खुदा वाहिद की कसम। अजीज़ाने गिरामी क़द्र, बस यही आपको समझाना था कि जब अल्लाह कुरान में कह चुका कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो कि जब एक आलिम और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते तो बाबे मदीनतुल इल्म और अबू जहल कैसे बराबर हो जाए? बाबे मदीनतुल इल्म की बराबरी कोई कैसे करे? यानी अल्लाह ने मयार इल्म बताया। ये तमीज़ है अपने उन्वान के लिए कि अल्लाह ने मयार इल्म बताया कि इल्म के बगैर चारा नहीं है। और मैं जितना बड़ा आलिम हो जाऊं, मेरे पास अली ना हो तो मुझसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। मेरे पास अली ना हो तो मुझसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। और ये भी एक हकीकत आपके हवाले करूं इमरान भाई, शायद तारीख आपने बहुत उलमा को सुना हुआ, मैं तो एक अन्ना से तालिब इल्म किबला तशरीफ फरमाए, दुआ ले लूंगा आपसे। याद रखिएगा कि आलिम होना सिफ्त है, बहादुर होना सिफ्त है, सखी होना सिफ्त है। और बढ़ जाइए, साबिर होना सिफ्त। यानी इंसान साबिर बन सकता है, सब्र नहीं। समझो फरमाइए मुझे। साबिर बन सकता है, सब्र नहीं। शुजा बन सकता है, शुजाअत नहीं। आलिम बन सकता है, इल्म नहीं। यही उन्वान है और इसी के ज़हन में गुफ्तगू है। आलिम बन सकता है, इल्म नहीं। बस यही आपको समझाना है। किसी में अगर आपको सिफात देखनी हो तो आपको सिफात नजर आएंगी, सिफ्त का मुरक्का नजर नहीं आएगा। यानी कोई शुजाअत आपको मुजस्सम नजर नहीं आएगी, सब्र आपको मुजस्सम नजर नहीं आएगा किसी इंसान में। हाँ, सिफ्त उसमें नजर आएगी, उसकी सिफ्त मुजस्सम नजर नहीं आएगी। जुमला कहने की इजाजत है। जाओ, साहिब तमद्दुस्सा के बारे लिखा है कि जब लोग अली के पास आए और अली के बारे में पूछने लगे तो एक ही फिक्रा, मेरे मौला मुत्तकियान ने अपने बारे में कहा, मैं मुस्तफा के लिए शुजा नहीं, मैं मुस्तफा के लिए शुजाअत था। मैं रुक जाऊंगा कुछ देर के लिए, समझ लो, मैं मुस्तफा के लिए शुजाअत था। यानी मुजस्सम शुजाअत अगर किसी को देखनी है तो वो अली को देखे। मुजस्सम शुजाअत अगर किसी को देखनी है तो वो अली को देखे। एक मंजिल और बढ़ाई। मुजस्सम सखावत किसी को देखनी है तो वो अली को देखे। और आगे बढ़ जाइए। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूं। बड़ी मंजिल हमारे यहाँ जो समझी जाती है वो इज्तिहाद की है। इज्तिहाद की डिग्री भी हासिल कर ले तो आलिम ही कहलाएंगे। आलिम ही कहलाएंगे। और कोई कुल इल्म का आलिम नहीं होता। जितना जानता है उसका आलिम है, जो नहीं जानता उससे जाहिल है। जुमला कहने की इजाजत दे रहे हैं, मैं जुमला आपके हवाले करूं। बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, आलिम कहलाने वाला भी कुल इल्म का आलिम नहीं होता। तो इल्म कुजा, किसी को आप इल्म नहीं कह सकते। कायनात में ज़ाते अली वो ज़ात है जिसे इल्म कहा जाता। अच्छा चलो रुक जाओ, इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ूं? बात और समझाना चाहता हूं। देखिए अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र,
ایک لفظ آگے پیچھے، ایک لفظ آگے ہو جائے تو عمل، وہی لفظ درمیان سے ہٹ کے آخر میں آ جائے تو علم۔ بس سمجھانا آپ کو یہی ہے۔ شاید آج کی میں جتنی بھی دیر آگے تقریر کر لوں لیکن حاصل یہی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آخر میں بات ہوتی لیکن آپ کے چہروں کی حسین سماعتوں کو سنتے، آپ کے چہروں کو زیارت کو کرتے ہوئے اور آپ کی حسین سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ صدقہ محمد اہل بیت محمد۔ علم ابو الفضل عباس میں میرا ہاتھ ہے، جہاں چاہے میرا ہاتھ رکھوا کے قسم اٹھوا لیجئے، مجھے امیر المومنین کے روزے پہ لے جا کے قسم اٹھوا لیجئے، میں دونوں باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علم و عمل کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ مجسم علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، تو عمل کہاں تلاش کرو گے؟ میں نے بڑا تلاش کیا، عمل آپ کے سامنے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، ان کو عمل کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ جو تم عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لانا، قیام، قعود، رکوع، سجود، یہ سارا ظاہر ہے۔ اس کے باطن کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، علم دیکھنا ہو علی کو دیکھو، عمل دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ سلامت رہو، شاد و آباد رہو، فکر اگلا ہے۔ کتنا بولو کتنی داد دعا ہو جائے، زرگر صاحب خدا واحد کی قسم، ابراہیم بھائی میں جملہ آپ کے مجمع کے دل پہ نقش کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علم دیکھنا ہو علی کو دیکھو، عمل دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ میں دعویٰ کرتا رہوں کہ میرے پاس علم ہے اور علی نہیں ہے تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ میں دعویٰ کرتا رہوں کہ میں بہت بڑا عمل کرنے والا پرہیزگار ہوں اور میرے عمل میں علی نہ ہو تو اللہ عمل منہ پہ مار۔ اور تینوں کے لیے ضروری ہے ایک ہی، آپ نے غور نہیں کیا، علم ہو چاہے عمل، ضروری یہی ہے۔ علم بھی اس کا مانا جائے گا جس کے پاس علی ہے، عمل بھی اس کا مانا جائے گا جس کے پاس علی ہے۔ پروردگار نے کہا چلو ایک منزل اور بڑھاؤ، ذرا سوچو کتنی داد دعا ہو جائے۔ فکرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت میں قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ آپ نے غور کیا یہ لہجہ قرآن کا ہے اور قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے۔ اور پھر اگلی منزل قرآن نے کہا جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو مصطفیٰ سے ویسے بات نہ کرنا۔ یہ پروٹوکول محمد ہے، یہ پروٹوکول مصطفیٰ ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ سے بلند کسی کی آواز ہو۔ جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے میرے حبیب سے گفتگو نہ کرنا۔ اچھا کچھ احباب آ رہے ہیں جو جگہ تنگ ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ تشریف لے آئے آگے، آئیے بسم اللہ آگے، آئیے اسے کوئی شرعی۔ اچھا اس کا صلوات کا مطلب یہ ہے کہ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ورنہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو ایک منزل آپ کے حوالے پر۔ عزیزان گرامی قدر جائیے دیکھیے سیرت نگاروں نے جتنی مصطفیٰ کی سیرت لکھی ہے
सबने ये लिखा कि अल्लाह तशरीफ फरमा ताईद फरमाएंगे कि हजरत पैगंबर का जसद अथर कद मयानत, लेकिन ये मुस्तफ़ा का एजाज था कि जितने मजमे में भी मोहम्मद खड़े होते थे मजमे से बुलंद नजर आते थे। शाबाश शाबाश, सलामत रहो सलामत रहो। फिक्रा आपके हवाले करना चाहता हूं, मैंने सारी मेहनत इसी फिक्रे के लिए की है। मुस्तफा का कद बुलंद नजर आता था ताकि मेरे मोहम्मद से कोई ऊंचा दिखाई ना दे, मेरे मोहम्मद से कोई ऊंचा ना दिखाई दे। अल्लाह को गवारा नहीं है कि तुम्हारी आवाज मुस्तफा की आवाज से बुलंद हो, अल्लाह को गवारा नहीं है कि कोई मोहम्मद से बुलंद हो। कितना दान और दुआ से नवाजे कि मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। पसंद है मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, जो अल्लाह मुस्तफा की बुलंदी का इतना ख्याल रखे कि कायनात में कोई उससे बुलंद नजर ना आए। उसने कहा कि किसी की आवाज बुलंद हुई तो उसके अमाल छीन लूंगा, बुलंद उससे कोई दिखाई नहीं देगा। एक मंजिल ऐसी आई, आवाज दे के कहने लगा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। आज अली को अपने से बुलंद कर ले। अल्लाह कह रहा है जो ये गवारा नहीं करता कि तुम अपनी आवाज भी मोहम्मद से बुलंद करो, जो ये गवारा नहीं करता कि कोई मोहम्मद से बुलंद दिखाई दे, सिर्फ अली को कहा, अली के बच्चों को भी बुलंद करवाया, अली के बच्चों को भी बुलंद करवाया, एक को दाएं और अपना ही जुमला पढ़ रहा हूं दोबारा, और फिर अपने ही जुल्फों को दरमियान में से बराबर तकसीम करके आधी जुल्फे हसन के हाथ में, आधी हुसैन के हाथ में देके दुनिया को बता दिया ये दुनिया के बनाए हुए इमाम नहीं है, ये जमाने के बनाए हुए इमाम नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए इमाम है। आधी जुल्फे हसन के हाथ में, आधी हुसैन के हाथ में देके रिसालत ने ये बता दिया जाओ हसन और हुसैन, रिसालत तुम्हारे इख्तियार में, चाहे दाएं फेर दो चाहे बाएं फेर दो। और फिर अब जुमला तुम्हारे हवाले, मैंने नहीं देखा हसन दाएं फेरना चाहते हो, हुसैन बाएं फेरना चाहते हो, नहीं बताया इमामत वही होती है जहां पहले का इरादा है वही आखिरी का इरादा है, नहीं जहां पहला आया है वही आखिरी आएगा। मेरे हबीब की आवाज से बुलंद आवाज न हो, मेरे मुस्तफा की आवाज से बुलंद आवाज मत करना। चलो एक मंजिल मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद गुफ्तगू तो आने वाली 2 तकरीरों में भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ मंजिलें आज की हद तक आपके हवाले कर दूँ। बस मोहम्मद अहले बैत इरादा है ना संता। तो ये है पैगंबर के लिए कि प्रोटोकॉल मुस्तफा ये। और अब ये बात आप न समझेंगे तो कौन समझेगा। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अजीजाने करामी पद, मैं अगर इल्म हासिल करूं तो मैं इल्म वही हासिल कर सकता हूं जो इस वक्त माशरे में राइज है। तवज्जो फरमाइए, बड़ी अहम बात आपके हवाले से। जो इस वक्त माशरे में राइज, फिजिक्स पढ़ लूं, केमिस्ट्री पढ़ लूं, बायोलॉजी पढ़ लूं, डॉक्टरेट कर लूं, इकोनॉमिक्स पढ़ लूं, माशियात का इल्म हासिल कर लूं, इल्म तिब हासिल कर लूं या दीन का इल्म हासिल कर लूं। वैसे तो मौला मुत्तकियान ने 2 ही इल्म हैं जिनके लिए कहा है कि यही इल्म है, इल्मुल तिब वल इल्मुल अदयान।
मौला ने कहा कि ये दो ही इल्म है, या दीन का इल्म या तिब का इल्म, जिसे मौला ने इल्म कर डाला और दुनिया को बताया। वैसे ये ब्रांचेस हैं अलूम की, आप किसी एक फील्ड में चले जाएंगे तो दूसरी से ला इल्म होंगे। और फिर भी मैं अगर मैं बड़ा ही शार्प माइंड हूं, मैंने 18 इल्म पढ़ लिए, 7 इल्म पढ़ लिए, 6 इल्म पढ़ लिए, 10 इल्म पढ़ लिए, 12, यही कैपेसिटी है ना। इंसानियत में भी अल्लाह ने दर्जे रखे हैं, और उसके उस दर्जों में भी अल्लाह ने अक्ल का मयार ये रखा है कि मेरा हाफजा बड़ा ही कमाल का था। मैंने फारसी भी सीख ली, अरबी भी सीख ली, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन मैं फ्रेंच नहीं जानता, स्पेनिश नहीं जानता। यहाँ आके इल्म रुक गया, यहाँ आके इल्म रुक गया। कमाल नहीं है, जहां तुम्हारा इल्म रुक जाता है वहीं मासूम अगर किसी को कंकर अपनी जबान पे रख के दे दे तो वो 73 जबानों का आलिम हो जाता। नहीं, मुझे फिर अगली मंजिल तक जाना, 73 जबानों का आलिम हो जाए, न पढ़े न किताब खरीदे, जिसके लुआब का ये असर हो कि वो तुम्हें 73 जबानों का आलिम बनाने पे कुदरत रखता हो, तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, मैं कितना ही आलिम हो जाऊं, मैं जमाने के अलूम तो सीख सकता हूं। क्या आपने ये देखा है, तवज्जो फरमाइएगा, क्या आपने ये मालूम किया कभी, इस पे रिसर्च कीजिएगा, कि मैं जानवरों के जिस्म का तो इल्म सीख सकता हूं, लेकिन जानवर की जबान नहीं सीख सकता। एक मंजिल है जो आपके हवाले करनी है, जानवर की जबान में नहीं सीख सकता, उसकी बॉडी का इल्म मुझे आ सकता है, उसको ठीक करने का तरीका जान सकता हो, उसे शेयर करने का तरीका जान सकता हो, लेकिन उसकी जबान पे कुदरत नहीं रख सकता। जो जबान पे कुदरत रखे उसी को इल्म कहते हैं। अब जुमला सुनो, अली तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते काबे का अचानक देखा मक्के की फिजा में एक तीतरनुमा परिंदा उड़ता हुआ आया। अली ने उसे बुलाया, वो कदमों पे आया, कदमों पे आना था। अली ने कहा तेरा रिस्क तो यहाँ लिखा ही नहीं है। नहीं पहुंचे आप, मेरा जुमला याद रखना, तेरा रिस्क तो यहाँ लिखा ही नहीं है। कौन बता रहा है? अली बता रहे हैं कि तेरा रिस्क तो यहाँ है ही नहीं। वही तो बताएगा जो तकसीम करता है कि किसका रिस्क कहाँ है। अभी 2-4 हाथ नीचे रह गए हैं, वो भी हाथ उठेंगे इंशाअल्लाह। मेरा जुमला याद रखना, तीतर से अली गुफ्तगू कर रहे हैं और वो अली को जवाब दे रहा है। जुमला आपके हवाले, या तारीख कहती है जनाब अमीर ने कहा तेरा रिस्क तो यहाँ है ही नहीं, तू यहाँ जिंदा कैसे है? उसने कहा मौला जब भूख लगती है तो आप पे सलवात पढ़ता हूँ, जब प्यास लगती है आपके दुश्मन पे लानत करना। जिसे अली का ना पता हो उसके पास इल्म नहीं है। किताबें तो हो सकती हैं, इल्म नहीं हो सकता। अगली मंजिल इससे ज्यादा अहम है और फिर आपकी मंजिल से करीब करता हूं। जब पैगंबर ने अपने भाई को, अपने वसी को, अपने जानशीन को बुलंद करके दुनिया को दिखा दिया, तवज्जो, और दुनिया ने अली के हाथ में बैत की, जनाब अमीर के हाथ पे बैत, जो फरमाइए बैत करी, तो ऐसे में लिखा यह है कि वापिस जब पलटे ना मदीना, तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं, आपस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा
गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं और आपस में गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं, पहले तो हमने सरकार की बात मानी, अब जा रहे हैं तो अपने भाई को अपनी जगह बिठा रहे हैं और मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो ये बात पैगंबर तक पहुंच गई। जब ये बात पहुंची, अब पैगंबर ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि हर पैगंबर अपने बाद एक जानशीन छोड़ के जाता है? क्या तुमने नहीं देखा कि पैगंबर अपने बाद जानशीन छोड़ के जाता है? उन्होंने कहा देखा, जैसे आपसे मजमा बोला, जैसे आपसे करामात देखी, हम चाहते हैं अली से भी देखिए, हम चाहते हैं अली से भी देखिए। पैगंबर ने कहा क्या तुमने नहीं देखा कि जब अंधेरे में अली अपने घर से बरामद होते हैं तो चेहरे से इतना नूर निकलता है कि ऐसा लगता है कि सूरज निकल आया, ऐसा लगता है सूरज निकल आया। उन्होंने कहा हाँ देखा है, हम और भी देखना चाहते हैं। पैगंबर बोल रहे हैं अली की शान में, क्या तुमने नहीं देखा कि अली चल रहे हैं और सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ता है, अली अपनी जगह नहीं छोड़ते। आप खामोश रह जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जुमले बड़े हैं, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या तुमने नहीं देखा कि अली चल रहे हो और सामने पहाड़ आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ता है, अली अपनी जगह नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा नहीं, हम और आयात भी देखना चाहते हैं, बस जैसे ही कहा ना हम और आयात देखना चाहते हैं। कितनी दाद दुआ हो जाए, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बस इसको याद रखिएगा। पैगंबर ने हाथ बुलंद किए, बुलंद करके कहा परवरदिगार, ये तेरे वली के बारे में और आयात देखना चाहते हैं, इन्हें और आयात दिखा। अभी पैगंबर ने दुआ खत्म की थी, या वो लोग अपनी जगह से उठे, अपने घरों की तरफ बढ़ने का इरादा किया, या घर का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा आवाज दे के कहता पहले अली की विलायत की गवाही दो, फिर दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो, कमीज उतारने का इरादा किया, कमीज गले में फंस गई। जो लफ्ज लिखे हैं किताब के वही आपके हवाले कर रहा हूं। कमीज गले में फंस गई। अली की विलायत की गवाही दो कि कमीज उतरे। जुमला आपके हवाले, मुझे नहीं पता आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यह तीसरी रिवायत की इबारत यह है कि दस्तरखान पे खाना लगा, निवाला उठा के दहन में लिया, निवाला हलक में फंस गया। आवाज आ रही थी अली की विलायत की गवाही में, ताकि हलक से निवाला उतरे। मैं दुनिया को बता रहा हूं, मुस्तफा ने बता दिया अली की विलायत पे कायम रहना। कभी गलों में निवाले अटकने शुरू हो, रसूल ने बताया अली की विलायत के लिए आयात भी अल्लाह ने दिखाई। या अली तेरी विलायत का इकरार, इससे जान छुड़ाइए। हर मौके पर यही आवाज आती अली की विलायत की गवाही। अली ने कहा मैंने थोड़ी किया, जिससे दुआ मंगवाई थी उसके पास जाओ। पैगंबर के पास आया, या रसूलल्लाह हमें इकरार है आपके भाई की विलायत। तो रसूल ने कहा देखो साबित कदम रहना, ये तो खत्म कराए दिए देखो, लेकिन साबित कदम रहना। अब ये फैसला तारीख करे कौन साबित कदम रहा, कौन मुकर गए। चलो रब्त से रब्त ना मिलाए, बात तो मैं तमाम कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मंजिलें आपके हवाले करूं। जमाना बदल गया, 25 साल गुजर गए, अली मसनद इख्तिदार पे आ गए। 40 हिजरी, कूफा, मिंबर पे बैठे हुए अली ने मजमे में देखा
भी तो थे मकाम गदीर पर। था तो या अली, क्या तुमने नहीं देखा था कि मुस्तफा ने मुझे अपने हाथों पे बुलंद किया? उसने कहा था तो या अली, लेकिन बहुत दूर था और सूरज बहुत तेज था और कपड़े से मैंने अपना मुंह छुपाया हुआ था, मुझे नजर नहीं आया। अली ने कहा कयामत तक मुंह छुपा के फिरेगा। सलामत रहो, शादाबाद रहो। तकरीर तमाम हो रही, मुझे तवील मसाइल पढ़ने, मैं चाहता हूं कुछ मंजिलें आपके हवाले हो जाओ। अली ने कहा कयामत तक अपना मुंह छुपा के फिरेगा। यही दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं आलम इस्लाम से, अली की विलायत पे साबित कदम रहो, कभी महशर में मुंह छुपाना पड़े। अली ने कहा अब कयामत तक गूंगा रहे, बहरा रहे, अब सुनेगा ही नहीं। जिसे अली नहीं सुनाई देता उसे कुछ सुनाई नहीं देता, जिसे अली ना दिखाई दे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अभी खुतबा दे रहे थे या खुतबा देते देते अचानक निगाह पड़ी मस्जिद के दरवाजे पर, सदर दरवाजे पर। खुदा आपको लेके जाए और जाए मस्जिद कूफा, जो गए हैं खुदा दोबारा लेके जाए और अक़बात आलिया की मौला हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त तो नाबूद फरमाए। बस ये याद रखिएगा कि अचानक अली की निगाह सदर दरवाजे पर पड़ी तो देखा, इल्म की बात है तो इसलिए कि शोर मचा और अली ने मालूम किया तो एक अजदहा करीब आया। अली ने कहा रास्ता दे दो, कुछ नहीं कहेगा। मन में वो चीरता हुआ अजदहा अली के मिंबर के करीब आया। उसने अपना फन फैलाया, अली के कान में कुछ बात है। मजमा कहता हमने सीटियों की सी आवाज सुनी, हमें नहीं पता क्या बात है। अली ने उसको उसकी जबान में जवाब दिया। उसने अपना फन गिराया और वापस चला गया। जब गया तो लोगों को करार आया। लोगों ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन, ये सांप आपसे? कौम अजिन्ना में से था, कौम अजिन्ना में से। क्या कहने आया था या अली? इसका बाप मर गया जिसे मैंने बैरुल अलम में हाकिम बनाया था। बैरुल अलम एक जंग है जो अली ने जिन्नात से लड़ी है, उसमें जो बचे थे उनमें से एक को सरदार बनाया था। वो सरदार मर गया था, उसका बेटा आया था अली को इत्तला देने के लिए। जानते तो थे लेकिन वो भी तो अपना फर्ज अदा करने आया है ना। कहाँ बैठे, मैं फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। जानते तो थे अली लेकिन वो भी तो अपना फर्ज अदा करने आया। उसे आगे बताया या अली मेरा बाप मर गया है, अब कौम यतीम है, कौन उसका सरपरस्त बने? अली ने कहा मैं तुझे कौम जिन्नात का सरपरस्त बना रहा हूँ। अली ने दुनिया वालों को बताया जब अजिन्ना का सरपरस्त मेरी इजाजत के बगैर नहीं बनता, इंसानों को किसने हक दिया बाद मुस्तफा अपना सरपरस्त मेरी इजाजत के बगैर बना? कूफे ले आए थे। 3 खिलाफतों के दौर तक मदीने में दारुल खिलाफा रहा इस्लाम का, और उसके बाद पैगंबर का जानशीन, पैगंबर का वसी दारुल खिलाफा लेके मुंतकिल हुए कूफा में। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है, आज तकरीर इस मंजिल पर रोक रहा हूँ, कल यहीं से बढ़ जाएगी बसत का मोहम्मद अली बैठे। जहाँ पहुंचे दारुल खिलाफा पहुंचाया, वो पोर्ट है
बंदरगाह, यानी सब तिजारत करने के लिए वहां आते हैं, कई मुल्कों से लोग आते हैं। अली जानते थे कि मैं ऐसी जगह पे दारुल खिलाफा मुंतकिल करने जा रहा हूं जहां बैठूंगा कूफे में आवाज जाएगी यमन में, बैठूंगा कूफे में जब ताजिर आएगा तो मस्जिद में खुतबा अली दे रहे होंगे, अली का इल्म दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। ये है जनाब अमीर की मसलहत। क्यों मुंतकिल किया? खुतबा देते थे, बड़ा मजमा होता था, और जब अली खुतबा दे ऐसे में सन्नाटा छा जाता। कभी अली इरादा कर ले, अली इरादा कर ले, अली इरादा कर ले के बगैर अलिफ के खुतबा दिया जाए, कभी इरादा करें कि बगैर नुक्ते के खुतबा दिया जाए, कभी खुतबा शक्शकिया देना शुरू करें तो ऐसे झूम झूम के अपने फदाइल सुनाए। वो मंजिलें तो मैं इस वक्त आपके हवाले नहीं कर सकता, लेकिन ये सब मस्जिद कूफा में अली बयान कर रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है, इल्म फैल रहा है। खुतबा देते देते अचानक निगाह पड़ी तो कुछ औरतें मस्जिद के दरवाजे में खड़ी थी। कंबर से कहा, कंबर पूछो ये क्या हाजित लेके आई, ये क्या हाजित लेके आई? कंबर गए और वापस आए, या अली आपसे मुलाकात चाहती है, पर्दे का इंतजाम करवाया गया। अली ने कहा, कूफे वाली हो क्या चाहती हो? कमौला हमने सुना है आपकी बेटी मुअल्लिमतुल कुरान है, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए, और शीओ तुम्हारी यतीमी की रात है, मुअल्लिमतुल कुरान है। हम चाहते हैं कि वो हमें कुरान का इल्म सिखाए। अली ने कहा, ठीक है जाओ, मैं बेटी को मदीने से बुलाता हूँ। आलिया मदीने में है, अली कूफे में है। तारीख में लिखा है, मुझे नहीं पता तुम कैसे सुनोगे, कैसे गिरिया करोगे, बस इतना जहन में रखना, आज ज़ैनब की यतीमी की रात है। पुरसा दे लेना, पुरसा दे लेना। बाप हंसाया सर से उठ रहा है। हसन और हुसैन की यतीमी की रात है, अब्बास की यतीमी की रात है। अज़ादार मैं कैसे पढ़ूं, तुम कैसे सुनोगे, यह तारीख के फिक्र यही है। अली ने हसन को बुलाया, हसन, हसन बेटा, जी बाबा, भाइयों की कतार ले जाओ मदीने, बहन को एहतराम के साथ कूफे ले आओ। ज़ैनब बाबा की शाही में कूफे आए, आके देखे कैसे अली बस रहा है। तमीर मंजिलें, इसलिए मैं भाइयों की कतार ले, अल्लाह शादो आबाद रखे, मौला किसी गम में न रुलाए। हुसैन इब्ने अली के गम में रोने वालों, मेरा जुमला सुनना, या तारीख के फिक्र यही है जो मैं दोहरा रहा हूँ। मकातिल ने लिखा, हसन और हुसैन भाइयों की कतार लेके चले, 18 भाई है। ज़ैनब आलिया के भाई पहुंचे हैं, बनी हाशिम के जवान साथ हैं, तलवारें खींचे हुए बनी हाशिम के मोहल्ले में दाखिल हुए। हसन और हुसैन इस्मत सरा में दाखिल हुए, आगे हसन है, पीछे हुसैन है। अजीब मंजर देखा, तारीख कहती है भाइयों भाइयों ने आपस में कुछ बातें की है। मंजर अजीब था, आलिया मुसल्ले पे बैठी हुई थी, हसन आगे बढ़े, फिर हुसैन आगे बढ़े। हसन ने हुसैन को देखा, हुसैन ने हसन को देखा, हसन ने आंख का इशारा करके भाई से कहा, भाई आप कहिए ना। अदाकार तारीख कहती है, गरीब भाई आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है, ज़ैनब आलिया, बाबा ने कहा, ज़ैनब आंखों से आगे देख, अली कैसे बस रहा। मसल्ले से उठी, मुसल्ले से उठी आलिया, भैया सफर की तैयारी का आगाज हो गया। महमिल लाए गए,
दरवाजे पे महमिल ला के रोका गया। मैं जुमला कयामत है खुदा की कसम। अजीजान गिरामी कदर, मेरा जुमला दिलों पे लिखना रोने के लिए काफी हो जाएगा। मकातिल ने लिखा है, अब्बास ने एक सदा बुलंद की, अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब। कोई भी बच्चा भी छत पे ना आए, अली की बेटी की सवारी जा रही है। ये आलिया की जिंदगी का पहला सफर है। मैं कैसे पढ़ूंगा, तुम कैसे सुनोगे। भाइयों ने ज़ैनब आलिया को महफिल में सवार कराया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, महफिल चला है। महफिल का चलना था या 2-2 मील आगे अब्बास का घोड़ा था। रास्ते वालों से कहते थे, रास्ते वालों मुसाफिरों रास्ता दो, अली की बेटी की सवारी आ रही है। जिसने मातम करना मेरी तरफ देखना। पीछे की तरफ मोहम्मद हल्फिया का घोड़ा दौड़ता था, सामने अब्बास का घोड़ा दौड़ता था, दाएं इमरान इब्ने अली का घोड़ा दौड़ता था, जाफर इब्ने अली का घोड़ा दौड़ता था। यह तारीख कहती है, मर जाता फिक्रा मैं न पड़ता। तारीख कहती है, हसन का घोड़ा महफिल के आगे था, हुसैन का महफिल के साथ साथ था। चंद कदम महफिल चलता था। हुसैन महफिल में देख के कहते थे, ज़ैनब थक तो नहीं गई। ज़ैनब में महफिल मौला किसी गम में न रुलाए। आलिया थक तो नहीं गई, बहन किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। काफिला रोक देते हैं आलिया। अज़ादार मक्तल के तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ भाई बहन की सवारी लेके चले। कूफे के बाहर इंतजार करने का हुक्म जनाब अमीर ने दिया था। अली ने कहा था, कूफे में दाखिल ना होना, पहले मुझे इत्तला देना। अली बेटी को लेने कूफे के बाहर आएगा या इत्तला पहुंचाई गई। अजीब मंजर था, मैं कैसे पढ़ूं। मक्तल कहता है, आलम ये था, अली बेटी को लेने के लिए आए, अमामा खुल के गले में आ गया था, गिरे बांध चाक थे, नालैन पैरों में नहीं थी। अब भी मातम नहीं करेगा। ये अली आगे बढ़ के कहते, हुसैन मेरी बेटी के महफल की मेहार मुझे दे। अली ने मेहार को लिया। आवाज आई, आलिया इत्मीनान का राज बाबा की चाही है। कूफे में कोई बच्चा भी बाहर नहीं है। जरा महफिल का पर्दा हटा। ये पहला मोहल्ला है जो ईसाइयों का मोहल्ला है, ये दिल्लियों का मोहल्ला है। अली ने कहा, ज़ैनब पहचान, ये ईसाइयों का मोहल्ला, ये गिद्दियों का मोहल्ला है। मैं तारीख के वो फिक्रे आपके हवाले कर रहा हूँ। या काफिला आगे बढ़ गया, अजीब मंजर आया। अली जैसे बहादुर की चीख निकली, रो के कहा, ज़ैनब जरा इस चौक को पहचान ले। यहाँ आम दिन में भी बड़ी भीड़ होती है, यहाँ सारे बाजार मिल जाते हैं। ज़ैनब आलिया की आवाज आई, बाबा ये बातें बेटों को बताई जाती है, जिन्होंने बाजारों में जाना है, जिन्होंने दरबारों में जाना है। आवाज आई, आलिया हो सकता है एक दिन तुझे इसी बाजार से गुजरना पड़े, लेकिन हालत ये होगी, हाथों में रस्सियां, पैरों में बेड़ियां, भागी भागी का शेर, पत्थरों की बात। पढ़ता हूं मैं पढ़ रहा हूं अगली मंजिल। बागी बागी का शोर। आलिया ने कहा, बाबा जिसके 18 भाई हो, तू भाई ना कर सके, तेरे मुकद्दर की बात है। आलिया ने कहा, जिसके 18 भाई हो उसको कौन बाजार में लाए। आवाज आई, आलिया ये मान आरज़ी है, एक दिन तुझे इसी बाजार में लाया जाएगा, पत्थरों की बारिश होगी। अज़ादार वक्त
वक्त गुजर गया, मैं कैसे पढ़ूं, तुम कैसे सुनोगे। मंजिल तो यही लिखी है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। शहादत कल पढ़ूंगा, मंजिल आज सुन लो। एक मंजिल तुम्हें सुनाता हूँ। जब अली के सर पे ज़र्ब लगी थी ना, अली बेटी के शाने पे सर रखे हुए थे। या बेटी और बाप में कुछ बातें हुई है, वो बातें तारीख में बहुत बाद में खुली है। मालूम है कब खुली है? एक उसमें से मंजिल वो है जब ज़ैनब आलिया ने उस बात को बताया जो बाप ने बेटी से की थी। सुन रहे हो? मैं जुमला पढ़ता हूँ, सर पे मातम करना। करबला हो गई, ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया। सुन फिक्रा आज़ादार, अकबर के बर्छी लग गई, ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया। कासिम के टुकड़े हो गए, ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया। असगर के तीर लग गया, ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया। अब्बास के बाजू कट गए, ज़ैनब ने कुछ नहीं बताया। हुसैन के गले पे खंजर चल गया, ज़ैनब कुछ न बोली। कब बोली आज़ादारों? मक्तल कहता है जब 1900 मील का फासला तय करके बाजार हमीदिया में काफिला आया, या छतों से पत्थरों की बारिश हुई, या इतने पत्थर बरसे, 15 आज़ादें अली की बेटी ने बाबू साथ पे सुनी। या ऐसे में 15 आज़ानों के बाद हुक्म हुआ, दरबार सज गया है, अली की बेटी को दरबार लाओ। या मक्तल कहता है खूनी हरामजादा आगे बढ़ा, इसने लोहे का ताजिया ना उठाया, पुश्ते सज्जाद में ताजिया ना आया, या ताजिया ना लग रहा था। आवाज़ बेहया, ताजिया ने क्यों मारा? कब पीछे गए दरबार चले, आवाज़ सज्जाद मैं ऐसे न जाऊंगी। आवाज़ खुपी अम्मा, वजह क्या है? आवाज़ सज्जाद 19 रमजान को मेरे बाबा अली ने कहा था, ज़ैनब